Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So, today we are going to cover up section number 179 and section number 180. What sections? Section 179 is for the powers of the board and section 180 is related to the restrictions on the powers of board. सो एक सेक्शन के अंदर हम पावर दे रहे हैं बोर्ड को और एक सेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं पावर्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं. सो कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शन 179 एंड सेक्शन 180. ठीक है, तो सेक्शन 179 से स्टार्ट करते हैं. पावर्स ऑफ द बोर्ड, सेक्शन 179. सेक्शन 179 ऑफ द एक्ट एंड रूल 8 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014 lay down the provisions in respect of powers of the board. ठीक है, so sorry I forgot to tell you the page number. The page number is 3.27. You can find these notes in the description box below. It will open up to the study material given on the ICAI website. ठीक है, so this is given on page number 3.27 of the module. Okay, so let's start with the section 179. Come on to the next page, because main provision is given on the next page only. Okay, so first point, board of directors is entitled to exercise the same powers as the company is authorized. तो board of directors जो हैं वो entitled हैं to exercise the same powers as the company is authorized. According to section 179 subsection 1, the board shall be entitled to exercise all such powers as the company is authorized to exercise and to do all such acts and things which the company is authorized to do. जो भी काम कंपनी को करने के लिए authorized है, मतलब जो भी काम कंपनी कर सकती है वो डायरेक्टर्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. In fact, the board of directors of a company enjoy wide ranging of powers, virtually all the powers for managing the affairs of the company except where the given matters require the approval of the shareholders in the general meeting. So what does this line mean? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, लेकिन मतलब मान के चलो सभी पावर्स होती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाले मैटर्स के लिए हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ही चाहिए, तो जिन मैटर्स के लिए लिखा ही हुआ है लॉ में कि हमें शेयर होल्डर्स का ही अप्रूवल चाहिए, तो उस केस में आपको वो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा. In other words, the board is empowered to exercise all such powers which shall secure the interests of the company and the shareholders. जिस भी तरह से कंपनी के इंटरेस्ट सिक्योर्ड रह सकते हैं, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट सिक्योर्ड रह सकते हैं, उन सभी पावर्स को आपको एक्सरसाइज करने के लिए पावर दी रखी है. ठीक है, next, placing of the restrictions on exercising the powers by the board. Placing of restrictions on exercising of powers by the board. These are the provisos to section 179 subsection 1. क्योंकि ऊपर हमने बताया कि सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हो जो भी कंपनी ऑथराइज्ड है टू एक्सरसाइज, फिर नीचे बताया कि उन पावर्स पर हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्लेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ प्रोविज़ो के अंदर ही दी हो सकती है. प्रोविजोस टू सेक्शन 179 subsection 1. The exercise of powers by the board of directors is not unbridled or unrestricted. It is provided that while exercising such power or doing such act or thing, the board shall be subject to the provisions contained in that behalf in the Companies Act 2013 or in the memorandum or articles or in any regulations which are not inconsistent with the act or memorandum or articles and are duly made thereunder. What does this mean? कि जो भी पावर्स हैं बोर्ड की वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ठीक है, ये प्रोवाइड किया हुआ है कि जब भी वो पावर को एक्सरसाइज करेंगे या कोई भी काम करते हैं तो बोर्ड को जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर जो भी मेमोरेंडम में चीज़ें लिखी हुई हैं, आर्टिकल्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई भी रेगुलेशंस हैं जो इनकन्सिस्टेंट नहीं होनी चाहिए विद द एक्ट और मेमोरेंडम, उन सभी चीज़ों का उसको ध्यान रखना पड़ेगा एज द डायरेक्टर. दिस विल इंक्लूड द रेगुलेशंस मेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. सो बेसिकली डायरेक्टर्स की जो पावर है वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ठीक है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि वो
जो भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 में मैंशनड है, मेमोरेंडम में मैंशनड है, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में मैंशनड है, कोई भी रेगुलेशंस बनाई हुई हैं विच आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट और दी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, मतलब वो रेगुलेशंस भी इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए एक्ट और मेमोरेंडम आर्टिकल्स के अगेंस्ट, ठीक है। एंड दिस विल इंक्लूड द रेगुलेशंस मेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। इन सभी का ध्यान रखकर आपको अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना होता है। फर्दर, the board shall not exercise any power or do any act or thing which is directed or required whether under the Companies Act 2013 or by the memorandum or articles of the company or otherwise to be exercised or done by the company in the general meeting. So further, the board shall not exercise, board exercise नहीं करेगा कोई भी पावर को या फिर कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगा जो कि करना था, ठीक है, वेदर द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी या फिर अदरवाइज टू बी एक्सरसाइज्ड डन बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। कोई भी ऐसा एक्ट था जिसको करना किसको था, शेयर होल्डर्स को करना था जनरल मीटिंग में, ठीक है। उस पावर का एक्सरसाइज कौन कर सकता था, सिर्फ शेयर होल्डर्स कर सकते थे। तो ऐसा कोई भी एक्ट, कोई भी पावर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते एज बीइंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी दो चीज़ों पर कि मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, जनरल मीटिंग और कंपनीज एक्ट, इन सबको ध्यान में रख के काम करो, ठीक है। दूसरा, जो भी काम आपको नहीं करना था, मतलब जो भी काम जनरल मीटिंग के अंदर होना था वो बोर्ड मीटिंग में मत कर देना, ठीक है। सो ये क्रक्स था इस पूरे पॉइंट का। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रेगुलेशन मेड इन द जनरल मीटिंग। सेक्शन 179 सबसेक्शन 2। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है आगे, मतलब जिस दिन कोई भी रेगुलेशन बनी जनरल मीटिंग के अंदर उसका जो इफेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, आगे चलकर होगा, पीछे वाले एक्ट्स पर नहीं लगेगा। एनी रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग शैल नॉट इनवैलिडेट एनी प्रायर एक्ट ऑफ द बोर्ड विच वुड हैव बीन वैलिड इफ दैट रेगुलेशन हैड नॉट बीन मेड। मतलब आज की डेट में कोई रेगुलेशन बनाई, ठीक है, तो इसकी वजह से कोई भी पहले जो एक्ट्स हुए हैं उसको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता बाय द रेगुलेशन मेड टुडे। इसका जो इफेक्ट होगा रेगुलेशन का वो आगे की ट्रांजैक्शंस पर, आगे के एक्ट्स पर लिया जाएगा। Thus, a regulation made by a company in the general meeting cannot have retrospective effect and therefore cannot invalidate the prior acts of the board otherwise validly executed earlier। पहले वैलिडली एग्जीक्यूट हो चुके हैं कुछ एक्ट, उस पर आज की डेट में कोई रेगुलेशन बनाकर आप कोई रोक टोक नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ द बोर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशंस। सेक्शन 179 सबसेक्शन 3। जो आपकी पावर है कि आप कोई भी एक्ट कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हो, इसको कैसे एक्सरसाइज करोगे, रेजोल्यूशन पास करके एक्सरसाइज करोगे। तो ये चीज़ कहाँ लिखी है, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में दी हुई है। फॉलोइंग पावर्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय मीन्स ऑफ द रेजोल्यूशंस पास्ड एट अ ड्यू बोर्ड मीटिंग। व्हाट डज इट मीन कि जो रेजोल्यूशंस पास होंगे वो किसी मीटिंग के अंदर होंगे, बोर्ड मीटिंग के अंदर होंगे। तो आपको कुछ याद आ रहा है, आपको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन याद आ रहा होगा इससे, कि जो भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं बाय सर्कुलेशंस, क्या वो रेजोल्यूशंस माने जाएंगे कि वो बोर्ड मीटिंग में पास हुए? नहीं। मतलब जो भी यहाँ पर लिखा है कि बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, क्या आप कह सकते हो कि मैंने सर्कुलर रेजोल्यूशन पास कर दिया है तो वो माना जाएगा कि वो बोर्ड मीटिंग में पास हुआ है? नहीं। सेक्शन 175 में हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, राइट। तो उसमें लिखा था कि कोई भी बोर्ड मीटिंग नहीं करते हो, कुछ रीजंस हैं जैसे कि इतनी कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर ट्रांजैक्ट करना है, तो उस केस में आप मीटिंग नहीं पास करके रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेज देते थे टू द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स क्या करते थे, डायरेक्टर्स उस पर बता देते थे वेदर दे अप्रूव इट और नॉट। मेजॉरिटी मिल जाती थी तो मान लेते थे कि पास हो गया है और फिर उसको नेक्स्ट मीटिंग के अंदर डिस्कस करके, नोट करके उसको मिनट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेते थे। बट लेकिन अगर 1/3 ने अगर बोल दिया कि ये मैटर ऐसा है किसी मीटिंग में डिस्कस करना है, तो उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में उसको वहीं छोड़ देता था चेयरपर्सन और नेक्स्ट मीटिंग के अंदर ही डिस्कस किया जाता था, राइट। आप, आई होप आपको सेक्शन 175 याद हो रहा होगा, रिकॉल हो रहा होगा। अगर नहीं भी हो रहा है तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हो जहाँ पर मैंने इस सेक्शन का भी लिंक दिया हुआ है,
जहाँ पर आप इस सेक्शन को चेक कर सकते हो कि क्या क्या था उस सेक्शन में। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोइंग पावर्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशंस पास्ड एट अ ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशंस पास कहाँ हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग के अंदर ही हो सकते हैं। तो पहला मैटर कौन सा है, पहला मैटर है टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। कोई शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है, कुछ कॉल्स अभी भी बाकी हैं, तो वो कॉल्स आप मंगवा सकते हो। कैसे, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। नेक्स्ट, टू ऑथराइज द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। टू ऑथराइज द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ is also given under section 68 of the Companies Act. So आप बायबैक भी कर सकते हो सिक्योरिटीज़ का, उसके लिए ऑथराइज कहाँ पर होगा, ऑथराइज बोर्ड मीटिंग के अंदर होगा। टू इशू सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग द डिबेंचर्स वेदर इन इंडिया और आउटसाइड। तो आप सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहते हो, जैसे कि डिबेंचर्स भी हैं उसके अंदर इंक्लूडेड, डिबेंचर्स इशू करना चाहते हो, सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट। कहाँ पर, इंडिया में करना चाहते हो, बाहर करना चाहते हो, डज नॉट मैटर, आप बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो। नेक्स्ट, टू बोरो मनीज। By way of explanation 2, it is clarified that in respect of dealings between a company and its bankers, the exercise of the power by the company specified in clause D above shall mean the arrangement made by the company with its or borrowing of money by way of overdraft, cash credits, otherwise. So जब भी किसी कंपनी को क्या करना होता है, बैंक से मनी बोरो करनी होती है, किस फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में, कैश क्रेडिट की फॉर्म में, या किसी भी तरह से, तो उस केस में उनको क्या पास करना पड़ता है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। दिस डज नॉट रेफर टू द एक्चुअल डे टू डे ऑपरेशन ऑन ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और अदर अकाउंट्स बाय मीन्स ऑफ विच द अरेंजमेंट सो मेड इज एक्चुअली अवेल ऑफ। इसका मतलब ये नहीं कि जो एक्चुअल डे टू डे ऑपरेशंस में आपको ओवरड्राफ्ट्स वगैरह लेने होते हैं उसके लिए ये बोर्ड रेजोल्यूशन की बात करें, नहीं, उसके लिए नहीं है, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डीलिंग्स बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स बैंकर्स, तो कंपनी अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी विच इज़ स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 186 सबसेक्शन 5 requires this power to be exercised by the board resolution which is passed with the consent of all the directors present at the meeting. So अगर आपको फंड्स इन्वेस्ट करने हैं, कंपनी के फंड्स हैं, उसको इन्वेस्ट करना है, तो यू कैन डू इट, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे पास एक और सेक्शन है, सेक्शन 186। सेक्शन 186 का सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन की जो पावर है आप उसको एक्सरसाइज करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, और उसको पास करने के लिए आपको कंसेंट चाहिए ऑल दी डायरेक्टर्स का। मतलब बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन की बात हो रही है, बोर्ड मीटिंग के यूनानिमस रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, to grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans. लोन्स देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसी भी लोन के रिस्पेक्ट में, ये सब आपके सेक्शन नंबर 186 सब सेक्शन 5 में ही कवर्ड होते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब यहाँ आपको इस सेक्शन के अंदर बता दिया कि आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ये सब कर सकते हो। सेक्शन 186 सब सेक्शन 5 में दिया हुआ है कि बोर्ड रेजोल्यूशन जो होना चाहिए दैट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, विच मीन्स यूनानिमस होना चाहिए। सो बोर्ड रेजोल्यूशन वैसे तो मेजॉरिटी से पास हो जाता, बट लेकिन इन दोनों के लिए, फंड्स को इन्वेस्ट करना है या फिर लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटी का केस है, तो आपको बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन ही चाहिए होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, इसमें आ जाता है एग्जेम्पशन का बॉक्स की सेक्शन 8 कंपनीज के केस में क्या बोला है कि जो सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 का क्लॉज DEF है ना, मतलब मनी बोरो करना, फंड्स ऑफ द कंपनी को इन्वेस्ट करना, लोन्स ग्रांट करना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, ये सब चीज़ों के लिए सेक्शन 8 कंपनी को एक एग्जेम्पशन दे दी कि वो चाहे तो इन मैटर्स को सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू भी पास कर सकती है। देखो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि ये सारे मैटर्स बोर्ड मीटिंग में ही पास होते हैं, लेकिन अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है जिसने कोई भी सेक्शन 137 या 92 का
वो क्या कर सकती है, मनी को बोरो भी कर सकती है, फंड्स इन्वेस्ट भी कर सकती है और लोन्स गारंटी सिक्योरिटी भी दे सकती है विदाउट कन्वीनिंग अ बोर्ड मीटिंग, मतलब सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू भी किया जा सकता है। अब आपको ये तो याद ही हो गया कि सेक्शन 137 और 92 का डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। दिस वी हैव बीन डूइंग सिंस लॉन्ग टाइम, सिंस पार्ट 1 ऑफ दी वीडियोज़ ओनली की सेक्शन 137 और 92 तो आपको अच्छे से याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी जिसने सेक्शन 137 92 सेक्शन का कंप्लायंस किया हुआ है और उसको फंड्स बोरो करने हैं, मनी बोरो करनी है फ्रॉम द बैंक्स, या फिर फंड्स इन्वेस्ट करने हैं कंपनी के, या फिर उसको क्या करना है, लोन्स ग्रांट करने हैं, गारंटी सिक्योरिटी देनी है, तो उस केस में आप कर सकते हो इवन विदाउट हैविंग अ बोर्ड मीटिंग। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो जी पॉइंट, टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द बोर्ड्स रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल, बोर्ड्स रिपोर्ट का अप्रूवल कहाँ पर होगा, बोर्ड मीटिंग में। कैसे होगा, रेजोल्यूशन पास करके। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, टू अप्रूव द अमालगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, रेजोल्यूशन। To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company, किसी कंपनी को टेक ओवर करना या फिर किसी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल स्टेक लेना, कंट्रोलिंग स्टेक लेना, उसको भी बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू किया जा सकता है बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन इन दी बोर्ड मीटिंग। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि अनपेड कॉल्स के लिए मनी मंगवाना, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़ को ऑथराइज करना, ठीक है। फिर हमने सिक्योरिटीज़ इशू करने वाली बात करी थी, इंक्लूडिंग द डिबेंचर्स, चाहे फिर वो इंडिया में इशू हो रहे हैं चाहे फिर बाहर हो रहे हैं। मनी बोरो करना, फंड्स इन्वेस्ट करना कंपनी के, लोन्स ग्रांट करना, गारंटी सिक्योरिटी देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड्स रिपोर्ट को अप्रूव करना, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना कंपनी के, अमालगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर, ठीक है, सब्सटेंशियल स्टेक अक्वायर करना, कंट्रोल करना, ये सभी बोर्ड रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग के थ्रू हो सकते हैं। Other matters as prescribed in Rule 8 of the Companies Meetings of the Board and its Powers, Rules 2014. These matters are also to be exercised only by means of resolutions passed at the meetings of the board. तो ये जो matters हैं नीचे mentioned हैं, ये Rule 8 में बता रखे हैं कि ये वाले matters को भी आप तभी कर सकते हो जब आप बोर्ड मीटिंग के अंदर resolution पास करते हो। कौन से matters, जैसे कि आपको कोई political contribution करना है, या फिर आपको KMP को अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, या आपको इंटरनल ऑडिटर्स को, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो सब कहाँ होगा, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। नोट, इट इज़ टू बी नोटेड दैट द अबव लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. There are certain other powers which are also to be exercised by the board of directors at a duly convened board meeting. Some of them are taken as under. So जैसे कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव लिस्ट है, प्लस कुछ और भी हैं मैटर्स जो नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस टू दी पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 182, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। कैजुअल वैकेंसी फिल आप कैसे फिल करें हैं, लेकिन आपको उसके बाद जनरल मीटिंग का अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। सो फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4, व्हेन द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग फॉल्स वेकेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म इन द नॉर्मल कोर्स। उसका नॉर्मल कोर्स में मतलब जितना टेन्योर था वो टेन्योर खत्म नहीं हो, उससे पहले वैकेंसी अराइज हो गई, कैजुअल वैकेंसी, तो उस केस में कौन फिलअप करता है, बोर्ड फिलअप करता है, बट उसको क्या करते हैं फिर मेंबर्स से जनरल मीटिंग के अंदर अप्रूवल ले लेते हैं। अब 161 सबसेक्शन 4 की हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या कि उसके अंदर जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं जनरल मीटिंग में, उसी की कैजुअल वैकेंसी फिल की जाती है सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 में। इफ़ यू रिमेंबर, इस पॉइंट पर मैंने काफ़ी फोकस किया था। द पॉइंट वॉज ओनली बिकॉज इसमें क्वेश्चंस कई बार घुमा घुमा के आ जाते हैं एंड हम गलती कर सकते हैं कि अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का बोर्ड मीटिंग में हुआ था, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, तो क्या कैजुअल वैकेंसी बोल सकते हैं इसको? नहीं बोल सकते, फिलअप नहीं होगी अंडर 161 सबसेक्शन 4। ये 161 सबसेक्शन 4 में तो फिलअप नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रूविंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 188। ट्रांजैक्शंस अप्रूव करना जो किसके साथ हो रही हैं, रिलेटेड पार्टीज के साथ हो रही हैं, विच आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 188। नेक्स्ट, गिविंग ऑफ लोन्स और मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स of other body corporates as provided under section 186। लोन्स देना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स करना, किस में, इन द शेयर्स ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स,
जो किस में बताया हुआ है, सेक्शन 186 में बताया हुआ है, जो हम कवर करेंगे. In this case, besides passing the resolution at the board meeting, consent of all the directors present in the meeting is also required. तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन हो गया. ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना. Appointing a person as a managing director who is also holding office of managing director or manager in another company as provided under section 203. ठीक है, दिस पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग. सो आप क्या कर रहे हो, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, वो कौन है, किस तरह से कर रहे हो, किस पोजीशन के लिए कर रहे हो, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर कर रहे हो. अब ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ऑलरेडी किसी और कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर है. ठीक है, जो कि सेक्शन 203 में इसके लिए अलग से प्रोविजन दिया हुआ है. दिस पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग. तो इसमें भी आपको बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन लेना होता है उस कंपनी के अंदर जिस कंपनी में आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर का, जो कि ऑलरेडी कहीं पर मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर है. सो इस केस में भी आपको बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन लेना होता है. सो हमने कौन से सेक्शन पढ़े, सेक्शन 186 और 203, जहाँ पर आपको बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए होता है. ठीक है, सो हमने फिर से मैं आपको एक बारी पॉइंट्स रिकॉल करा देती हूँ जिससे कि जब आप रिवाइज करो इसी वीडियो के थ्रू या कैसे भी आपको फटाफट से रिकॉल हो जाए. ठीक है, फर्स्ट, अनपेड शेयर्स पर कॉल मंगवाना. सेकंड, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑथराइज करना. थर्ड, सिक्योरिटीज़ डिवेंचर्स इशू करना वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड. फोर्थ, मनी बोरो करना फ्रॉम द बैंक्स. फिफ्थ, फंड्स इन्वेस्ट करना कंपनी के. सिक्स्थ, लोन्स गारंटी सिक्योरिटी. नेक्स्ट, सेवेंथ, अप्रूव करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बोर्ड रिपोर्ट को. एट्थ, डाइवर्सिफाई करना बिजनेस को कंपनी के. फिर अप्रूव करना अमेलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर करना, कंट्रोलिंग या सब्सटैंशियल स्टेक एक्वायर करना किसी और कंपनी के अंदर, या फिर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस करना. ठीक है, जो सेक्शन 182 में दिया हुआ है. कि KMP को अपॉइंट करना, रिमूव करना, इंटरनल ऑडिटर्स को, सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, कैजुअल वैकेंसी फिलअप करना सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 की, या फिर 188 वाली ट्रांजैक्शंस को, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना, या फिर सेक्शन 186 के हिसाब से लोन्स इन्वेस्टमेंट्स करना इन दी अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स. ठीक है, या फिर आप किसी MD को अपॉइंट करो जो ऑलरेडी किसी और कंपनी के अंदर MD या फिर मैनेजर है. ठीक है, तो आपको इसमें से 4 पॉइंट्स हमने ऐसे पढ़े जहाँ पर बोर्ड मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए होता है. कौन से पहला पढ़ा था, फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हो, लोन्स ग्रांट कर रहे हो, गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो. तीसरा कौन सा पढ़ा, तीसरा पढ़ा सेक्शन 186 के अंदर कि आप लोन्स या इन्वेस्टमेंट्स करो किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर. ठीक है, या फिर आप क्या करो, सेक्शन 203 के हिसाब से किसी ऐसे पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हो जो ऑलरेडी किसी और कंपनी में मैनेजर या फिर MD है. क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है ना कि कोई भी पर्सन MD या मैनेजर नहीं बन सकता किसी की कोई भी 2 से ज़्यादा कंपनीज़ में. सेक्शन 203 में पढ़ा था कि 2 से ज़्यादा कंपनीज़ के अंदर MD और मैनेजर नहीं बन सकते हो. ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा रिकॉल हो गया होगा और रिवाइज भी हो गया होगा अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट, permission to board of directors to delegate some of its powers. First proviso to section 179 subsection 3. The board may by a resolution passed at a meeting. या अगर आपको delegate भी करनी है अपनी powers को तो भी आपको एक resolution pass करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए in the meeting. Delegate the powers specified in clauses D to F above, that is borrowing of monies, investing of funds, granting of loans, giving of guarantee, providing security, etc. The delegation may be made on such conditions as may be specified and to the following. So इसमें बोला है कि आप अपनी पावर, कौन सी वाली पावर, टू पास अ रेजोल्यूशन, किस किस केस में, मनी बोरो करते वक्त, फंड्स इन्वेस्ट करते वक्त, लोन्स गारंटी सिक्योरिटी देते वक्त, इन सभी के लिए अगर आपको ये वाली पावर डेलीगेट करनी है तो आपको सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ठीक है, दूसरा बताया हुआ है कि ये आप डेलीगेट कर सकते हो कुछ कंडीशंस के साथ एंड कुछ ही लोगों को. ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है किन लोगों को आप ये डेलीगेट कर सकते हो. तो कोई भी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स है, जैसे कि हमने पढ़ी थी ऑडिट कमेटी, NRC, SRC, ये वाली कमिटीज़ हो गई, या फिर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर को, या फिर किसी मैनेजर को, या फिर एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी. ठीक है,
या फिर किसी भी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच ऑफिस, तो अपनी प्रिंसिपल कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर के को या फिर मैनेजर को या फिर किसी ब्रांच ऑफिस के प्रिंसिपल मैनेजर को, अगर कंपनी का ब्रांच ऑफिस है तो आप ये सारी पावर डेलीगेट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। 4 लोगों को कर सकते हो मैक्सिमम, किस तरीके से करोगे, रेजोल्यूशन पास करोगे मीटिंग का। अब ये भी सिर्फ रेस्ट्रिक्टिव दी है, सिर्फ D2F क्लॉज के लिए ही दी है, जिसमें मनी बोरो करने की बात, इन्वेस्ट करने की बात, लोन्स गारंटी सिक्योरिटी की बात की हुई थी। ठीक है, अब आती हैं कुछ बात कंडीशंस की। इम्पोजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस बाय द शेयर होल्डर, सेक्शन 179 सबसेक्शन 4। The company through the general meeting has the powers to impose restrictions and conditions on the exercise by the board of any of the powers specified in section 179. तो जनरल मीटिंग के अंदर क्या कर सकते हो आप, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हो उन पावर्स पर जो सेक्शन 179 ने बोर्ड को दे रखी हैं। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर very much in their right to impose restrictions and conditions on the powers of the board of directors. The shareholders may exercise the powers of imposing restrictions by passing resolutions at the general meetings and may also make regulations having only retrospective effect, curtailing the extent of powers exercisable by the board. सो इन अदर वर्ड्स शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है कि वो रेस्ट्रिक्शंस कंडीशंस को इम्पोज कर सकते हैं, किस पर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है उस पर। शेयर होल्डर्स चाहें तो इन पावर्स को इम्पोज कर सकते हैं बाय पासिंग दी रेजोल्यूशंस एट दी जनरल मीटिंग, एंड वो रेगुलेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें होना चाहिए था प्रस्पेक्टिव इफेक्ट, वैसे रेट्रोस्पेक्टिव लिखा हुआ है, प्रस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि प्रस्पेक्टिव इफेक्ट होता है अगर कोई भी रेगुलेशंस बनाई जाती हैं इन दी जनरल मीटिंग। तो दिस सीम्स टू बी इनकरेक्ट, यहाँ पर प्रस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए था। curtailing the extent of powers exercisable by the board. As we know, the board of directors are fully empowered to manage the day-to-day affairs of the company. The shareholders cannot impose their will on the board. They cannot interfere and instruct the board to discharge their certain powers in a particular manner unless there are reasons to do so. ये हमने चैप्टर 1 में भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि बार बार शेयर होल्डर्स इंटरफेयर करें जो भी काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं उसमें। उन्हें लगता है तो डायरेक्टर चेंज कर दो, बट ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ में इंटरफेयर करने लग जाओ। ठीक है, तो डायरेक्टर्स के पास क्या पावर होती है कि वो डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं, तो इस वजह से उनके पास पावर्स होती हैं टू टेक द डिसीजंस। तो शेयर होल्डर्स हर चीज़ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं टू डू सो। ठीक है, इन दी फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव केसेस हाउएवर द शेयर होल्डर्स आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द बोर्ड, जैसे कि व्हेन डायरेक्टर्स आर एक्टिंग मैलिफाइड। अब किस किस केस में शेयर होल्डर अपनी राय रख सकता है या फिर वो अपनी पावर्स जो बोर्ड के पास हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। So when directors are acting malified, that is their conduct is such that they are acting for their own benefits at the expense of the interests of the company. कंपनी के एक्सपेंस पर खुद बेनिफिट लेने पे लगे हुए हैं डायरेक्टर्स, तो उस केस में क्या शेयर होल्डर्स को अपना बीच में बोलने का हक नहीं होना चाहिए, राइट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर दे दिया कि डायरेक्टर्स खुद ही मैलिफाइड वे में एक्ट कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी। Thus, when directors are wrongdoers and their personal interest conflicts with their duty, उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनके ड्यूटी के आड़े आते हैं, मतलब उनके पर्सनल इफेक्ट्स बिकम मोर फेवरेबल टू देम as compared to the duty, they are more committed towards their personal interest rather than performing their duty towards the company. उस केस में क्या होगा? The majority of the shareholders shall take the decisions to undo the wrong done by the directors. So जो भी गलत काम किया है डायरेक्टर्स ने उसको वो undo इफेक्ट दे सकते हैं, मतलब वापस कर सकते हैं। Excuse me, इसमें लिखा हुआ है उनकी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू अंडू द रॉन्ग डन बाय द डायरेक्टर्स। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन ऑल द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर इनकॉम्पिटेंट टू एक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोरम। सारे के सारे डायरेक्टर्स ही इंटरेस्टेड बन गए, मतलब सेक्शन 184 लग गया, जिसकी वजह से सारे के सारे डायरेक्टर्स बिकेम इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो उस केस में क्या होगा? वो कोरम नहीं हो पाएगा मीटिंग में, क्योंकि जो अनइंटरेस्टेड रहते हैं, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं, वो मीटिंग करते हैं और उन्हीं का कोरम माना जाता है। अगर
interested directors become more than equal to 2/3 of the टोटल डायरेक्टर्स, टोटल स्ट्रेंथ. तो उस केस में हमने पढ़ा था कि जो भी नॉन इंटरेस्टेड हैं वो हमारा कोरम फॉर्म कर लेंगे, बट दैट शुड नॉट बी लेस देन 2. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बट यहाँ लिखा है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स ही इंटरेस्टेड हो गए, सारे ही डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो गए किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में. तो उस केस में क्या होगा, वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे टू एक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोरम. इन सच अ केस द शेयर होल्डर्स शैल डिसाइड थ्रू मेजॉरिटी in the general meeting whether to entertain that transaction or not. तो क्या करेंगे, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा ये डिसाइड करने के लिए कि क्या इस ट्रांजैक्शन को एंटरटेन किया भी जाए या ना किया जाए. नेक्स्ट, when there happens to be a deadlock in the management. डेडलॉक हो गया मैनेजमेंट के अंदर, बिकॉज जो डायरेक्टर्स हैं वो ही खुद से अच्छे से बात नहीं कर रहे, ना ही जो काम उनको करना है वो उसमें विलिंग है, करना ही नहीं चाह रहे हैं. तो इस वजह से क्या होगा, जब जिनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूटी थी कि वो कंपनी को चलाएं और वो ये काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में किसको आगे आना, शेयर होल्डर्स को ही आगे आना पड़ेगा टू रन द बिजनेस ऑफ द कंपनी. So when there happens to be a deadlock in the management because the directors are not on talking terms or unwilling to act, thus paving way for the shareholders to ensure running of a company. Okay, next, exemption to banking company, second proviso to section 179 subsection 3. बैंकिंग कंपनीज को एग्जेम्पशन दे दी, किसके थ्रू, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 के सेकेंड प्रोविजो के थ्रू. इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग कंपनीज फॉलोइंग एग्जेम्पशंस आर प्रोवाइडेड. The acceptance of deposits of money by a banking company in the ordinary course of its business from the public which is repayable on demand or otherwise, or withdrawable by check, draft, order or otherwise shall not be deemed to be a borrowing of monies within section 179. तो बैंकिंग कंपनी है, उनका तो काम ही है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना. तो इस केस में अगर वो एज अ बिजनेस अपना पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं विच इज़ रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है, या फिर चेक के थ्रू ले सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू वो वापस ले सकते हैं उस अमाउंट को, तो उसको हम बोरोइंग ऑफ मनीज तो नहीं मान सकते, ठीक है, तो उसको हम बोरोइंग्स ऑफ मनी नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 179. फर्दर, प्लेसिंग ऑफ मनीज ऑन द डिपॉजिट a banking company with another bank as the board may prescribe shall not be deemed to be making of loans by a banking company within the meaning of section 179. because ये banking companies के लिए तो routine nature का work होता है, तो उनके लिए हर बात पे, हर एक deposit पर, loans पर section 179 की वजह से board meeting बुलाना सही नहीं होता ना, इसीलिए exemption दे दी to the banking companies. Note, by way of explanation 1, it is clarified that clause D above, that is borrow monies, shall not apply to the borrowings by a banking company from another banking companies or from the Reserve Bank of India, the State Bank of India or any other banks established by or under any act. Thus, in such cases of borrowings by a banking company, there is no need to obtain sanction by means of a resolution passed at a duly convened board meeting. This is practical also to provide such exemption keeping in view the business of a banking company. जो मैं आपको explanation दे रही थी वो ही given है in the notes कि banking company के लिए तो business है, काम ही यही है, उनका routine nature का काम है, तो इसीलिए हर चीज़ के लिए duly convened board meeting होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि तो रूटीन नेचर वर्क है, तो इसीलिए प्रैक्टिकली जो चीज़ पॉसिबल हो पाती उसी के हिसाब से प्रोविजंस बनाए गए हैं. आई होप यू आर क्लियर विद द सेक्शन 179 पावर्स ऑफ द बोर्ड. ओके, so next section we are covering is the restrictions on the powers of board, section 180. ठीक है, this is given on page number 3.31, continuation में ही है. Okay, so the powers of the board of directors of a company are not unrestricted or uncontrollable as section 180 portrays. तो जैसे वहाँ पर लिखा था ना कि सारी की सारी पावर्स हैं टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो वैसा नहीं है जैसे सेक्शन 180 में बताया हुआ है कि वो restricted हैं, controllable हैं. This section contains the directive provisions which direct that the powers in respect of specified matters shall be exercised by the board subject to the certain restrictions, that is in such cases the exercise of powers by the board shall be restricted as per law. Section 180 is not applicable to a private company, so there are no restrictions on the powers of board as per section 180 in case of a private company.
डू रिमेंबर दिस, ओके, एग्जेम्पशन है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट इज matters in respect of which powers shall be exercised after obtaining consent by a special resolution. matters वो वाले जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जो बोर्ड की पावर है वो आप एक्सरसाइज कर पाओगे कब, जब आपने ऑलरेडी जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लिया होगा इन मैटर्स के लिए। So according to section 180 subsection 1, following are the matters in respect of which the board shall exercise the powers with the consent of the company by a special resolution and not on its own at the board meeting। सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया और हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, फिर जाके ये वाले मैटर्स आपके हो पाएंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, टू सेल, lease or otherwise dispose of the whole or substantially the whole of the undertaking of the company, or where the company owns more than one undertaking of the whole or substantially the whole of any of such undertakings। दो केसेस, कंपनी के पास एक ही अंडरटेकिंग है, कंपनी के पास एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग्स हैं। कंपनी के पास अगर एक ही अंडरटेकिंग है तो उस अंडरटेकिंग को बेच नहीं सकते, लीज पर नहीं दे सकते, या फिर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते एज अ होल, या उसका मेजर पोर्शन सब्सटैंशियली दी होल, ठीक है। या फिर कंपनी के पास एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग्स हैं तो उसमें से कोई भी एक अंडरटेकिंग या दो अंडरटेकिंग को आप बेच नहीं सकते, लीज पर नहीं दे सकते, या फिर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते एज अ होल या फिर सब्सटैंशियली द होल, ठीक है। अब इसमें मतलब आएगा कि अंडरटेकिंग किसको कहेंगे, सब्सटैंशियली द होल का मतलब क्या है, तो ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं इसी सेक्शन में, ठीक है। सो कोई भी अगर आपको अंडरटेकिंग, कंपनी की अंडरटेकिंग को बेचना है, लीज पर देना है, डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा और उसके बाद आप बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ये ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर सकते हो, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, out of multiple undertakings of a company, even if one is sold, leased or disposed of, either wholly or substantially the consent by a special resolution shall be required। so इसमें बोला है कि मल्टीपल अंडरटेकिंग्स में से अगर आप एक भी बेच देते हो, लीज पर दे देते हो, या फिर डिस्पोज ऑफ कर देते हो, या तो पूरी की पूरी या फिर सब्सटैंशियली, ऐसा नहीं छोटा मोटा बेच दिया तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, या तो पूरी की पूरी बेच दी या फिर सब्सटैंशियली बेच दी, तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड। ओके, imposition of conditions by the shareholders. According to section 180 subsection 4, any special resolution passed by the company consenting to the transaction of sell, lease, etc. may stipulate certain conditions, and if so, the same need to be specified in such resolution। मतलब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है may और यहाँ पर लिखा है if so। इसका मतलब है कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन देते टाइम शेयर होल्डर्स ने कुछ कंडीशंस रखने चाहिए तो वो रख सकते हैं, और उन कंडीशंस को वो कहाँ मेंशन करेंगे, इन द रेजोल्यूशन। अमंग अदर्स, द कंडीशंस शैल बी रिगार्डिंग द यूज, डिस्पोजल या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेल प्रोसीड्स विच में रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। आपने बेच दिया अंडरटेकिंग को, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ सेल प्रोसीड्स आएंगी, तो वो सेल प्रोसीड्स को आप किस तरीके से यूज़ करने वाले हो, किस तरीके से इन्वेस्ट करने वाले हो, इस सब चीज़ों की बात भी हो सकती है, वो कंडीशंस में डाला जा सकता है। सेक्शन 180 सबसेक्शन 4, नॉट टू बी टेकन एज ऑथराइजेशन फॉर रिडक्शन इन कैपिटल। 180 सबसेक्शन 4 में इस चीज़ को मत मान लेना, डीम मत कर लेना कि आप कैपिटल ऑफ द कंपनी को भी रिड्यूस कर सकते हो। It is provided that subsection 4 shall not be deemed to authorize the company to effect any reduction in its capital. Such reduction must be effected in accordance with the provisions contained in the Companies Act 2013. So ये प्रोवाइड किया गया है सबसेक्शन 4 को, ये मत मान लेना कि आप ऑथराइज्ड हो कि आप कैपिटल को भी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल रिड्यूस हो सकती है एज पर दी प्रोविजंस ओनली विच आर मेंशन्ड इन कंपनीज एक्ट, अपनी मर्जी से मत कर लेना, ठीक है। नो नीड फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन इफ सेलिंग, लीजिंग एट्सेट्रा इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंपनी। अगर आपकी कंपनी का बिजनेस ही यही है, सेल करना, लीज करना, तो इस केस में आपको हर बार के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। देखो, जब वो काम ऑलरेडी आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट होते हैं तो उस केस में ये चीज़ करना कि आपको एसआर पास करना पड़ेगा, ये चीज़ सही नहीं रहेगी,
इसीलिए एग्जेम्पशन दी जाती है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180 सबसेक्शन 3B, the restriction in the form of special resolution is not attracted to the sale or lease of any property of the company where its ordinary business consists of such selling or leasing. Clean title of the buyer, etc. Section 180 subsection 3A. In respect of a buyer who buys or in respect of other person who takes on lease, that is lessee, any property, investment or undertaking as is referred to in section 180 subsection 1A. सेक्शन 180 सबसेक्शन 1A मतलब जो प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग लीज पर दी या फिर सेल करी या फिर डिस्पोज ऑफ करी, उस बायर ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, या लीज पर ली है, तो उस केस में उस बंदे ने तो गुड फेथ में ख़रीदा था, उसको नहीं पता था कि कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, ठीक है. तो इस केस में उस बंदे ने तो गुड फेथ में ख़रीदा था, तो इस केस में जो टाइटल है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा जस्ट बिकॉज कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया था, ठीक है. सो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बायर, तो बायर को प्रॉब्लम ना हो इसलिए प्रोविजन डाला गया. इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बायर हु बाइज और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन हु टेक्स ऑन लीज, दैट इज लेसी, एनी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और अंडरटेकिंग एज इज रेफर टू इन सेक्शन 180 सबसेक्शन 1A इन गुड फेथ, ठीक है. His title shall not be affected despite the fact that the directors resorted to selling or leasing without first obtaining the consent of the company by a special resolution. Just इस वजह से तो बायर को कोई नुकसान नहीं होगा. ओके, नोट नंबर 1, द एक्सप्रेशन. अब आ जाते हैं डेफिनेशन कि अंडरटेकिंग किसको कहते हैं, सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग किसको कहते हैं. So the expression undertaking means an undertaking in which the investment of the company exceeds 20% of its net worth, ठीक है. अंडरटेकिंग का मतलब अगर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कंपनी की वो 20% नेटवर्थ से ज़्यादा हैं, 20% है तो नहीं, 20% से ज़्यादा की नेटवर्थ कंपनी की किसी में लगी हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरटेकिंग बोलते हैं. अब ये नेटवर्थ कहाँ से लोगे, ये लोगे एज पर दी ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी, या फिर एन अंडरटेकिंग विच जनरेट्स, या तो ये डेफिनेशन में फिट हो गया आप, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग जो जनरेट कर रही है 20% ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी टोटल इनकम का 20%, टोटल इनकम का 20% तो इसी अंडरटेकिंग से आ रहा था, तो सब्सटैंशियल इनकम तो आपकी इसी से आ रही थी, इसी वजह से उसको भी अंडरटेकिंग बोला जाएगा. द एक्सप्रेशन सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग का मतलब क्या है. इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल मीन 20% or more of the value of the undertaking as per the audited balance sheet of the preceding financial year. किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर 20% या उससे ज़्यादा की अंडरटेकिंग आप बेच देते हो तो उसको बोलते हैं कि आपने सब्सटैंशियल बेच दिया, ठीक है, या लीज पर दे दिया या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो 20% या उससे ज़्यादा को बोलेंगे सब्सटैंशियल, ठीक है. अब ये जो फिगर लेनी है अंडरटेकिंग की, तो अंडरटेकिंग की वैल्यू की फिगर आप लोगे फ्रॉम द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट, ठीक है. आई होप दैट टर्म्स आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट, in case the provisions of section 110 of the act apply to the company which is resorting to sale of the whole or substantially the whole of its undertaking in terms of section 180 subsection 1C, it shall pass the special resolution containing such item of business by means of voting through postal ballot. तो अगर सेक्शन 110 आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है कंपनी के ऊपर, जो भी ये सेल या फिर सेल करने वाली है इस अंडरटेकिंग को, तो उसके केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. किस तरीके से, पोस्टल बैलेट के थ्रू, ठीक है. ओके, one person company and other companies having members up to 200 are not required to transact any business through postal ballot. So अगर कोई 1 person company है, अंदर सिर्फ मेंबर कितने हैं, 200 तक ही मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है थ्रू पोस्टल बैलेट. आप नॉर्मली कर सकते हो, पोस्टल बैलेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है. Next point, to invest otherwise in trust securities, the amount of compensation received by it as a result of any merger amalgamation.
सो आप क्या करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो या तो जो कॉम्पनसेशन आपको मिला है बिकॉज ऑफ मर्जर या अमेलगमेशन, उस कॉम्पनसेशन, कंपनी का अमेलगमेशन या मर्जर हुआ, ठीक है, उस वजह से कंपनी को कोई कॉम्पनसेशन मिला है, तो उस कॉम्पनसेशन को आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या तो ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में या फिर अदर्स में, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ, क्योंकि ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट बेस्ड होती हैं, देयर इज़ नो रिस्क। लेकिन आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। To invest otherwise in trust securities, the amount of compensation received by it as a result of any merger or amalgamation, it implies that if the investment of the compensation amount is made in trust securities, there is no need to obtain the consent of the members through special resolution. ठीक है, next point. To borrow money where the money to be borrowed together with the money already borrowed by the company will exceed the aggregate of its paid up share capital, free reserves and securities premium apart from the temporary loans obtained from the company's bankers in the ordinary course of business. So यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप मनी बोरो कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो मनी है अलॉन्ग विद दी मनी, आप सपोज देखो इस पॉइंट में कह रहे हैं कि आप कुछ मनी बोरो करना चाहते हो फ्रॉम दी बैंक्स, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी कुछ बोरोइंग्स आ रही हैं, तो आज की डेट में जितनी बोरोइंग्स कर चुके हो प्लस जितनी प्रपोज्ड टू बी टेकन है, प्रपोज्ड टू बी बोरोड है, वो वाली मिलाकर अगर आपके पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से ज़्यादा की हैं तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम तक है तो उस केस में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू पास दी स्पेशल रेजोल्यूशन। बट अब इसमें बोला हुआ है कि जो बोरोइंग्स हैं, लोन्स हैं, उसके अंदर आप वो वाली बोरोइंग्स लोन्स नहीं लोगे जो आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए ली गई हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल के लिए हैं, टेम्परेरी पर्पस के लिए लोन्स लिए हैं। लेकिन अगर आप कोई लोन लेते हो जिसका नेचर कैसा है, कैपिटल नेचर का है, उस केस में कैपिटल नेचर वाले टेम्पररी लोन्स को यू विल इंक्लूड इट इन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स। बट अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए लोन लिया है, दैट वोंट बी काउंटेड इन दिस थिंग। जहाँ पर हमें लोन देखना है ना कि एक्सीड कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें हम उसको ऐड नहीं करेंगे। सो टू बोरो मनी वेयर द मनी टू बी बोरोड टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड, इसी की वजह से मैंने बोला जितनी प्रपोज्ड टू बी बोरोड है और जितनी ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो टू बोरो मनी वेयर द मनी टू बी बोरोड, मतलब टू बी बोरोड, प्रपोज टू बी बोरोड, टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड, मतलब जो ऑलरेडी आज तक की डेट में बोरोड है बाय द कंपनी, विल एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम apart from the temporary loans obtained from the company's bankers in the ordinary course of business. In simple words, the borrowings including loans raised for meeting the financial expenditure of a capital nature are not to include temporary loans which are obtained by the company from its bankers in the ordinary course of business. ठीक है, limit on borrowings needs to be specified. Section 180 subsection 2 requires that every special resolution passed by the company in the general meeting in relation to the borrowings shall specify the total amount up to which the monies may be borrowed by the board of directors. सिर्फ जनरल मीटिंग के अंदर एसआर पास होने का मतलब ये नहीं कि आप मनी बोरो कर लोगे। बोला हुआ है कि जो जनरल मीटिंग में एसआर पास कर रहे हो ना शेयर होल्डर्स, आप उसमें ये भी मेंशन करो कि कितने अमाउंट तक बोरो किया जा सकता है, क्योंकि जब शेयर होल्डर्स अगर अमाउंट मेंशन नहीं करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अनरेस्ट्रिक्टेड पावर आ जाएगी कि वो कितना मर्जी भी बोरो कर सकते हैं। तो इसीलिए वो उस पर्टिकुलर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितनी लिमिट है, मतलब ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो अप टू दिस अमाउंट यू कैन बोरो, ठीक है। सो इसीलिए इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा ऑन दी अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स। शेयर होल्डर्स को मेंशन करना होता है कि टोटल अमाउंट कितना है जो आप बोरो कर सकते हो। So limit on borrowings needs to be specified. Section 180 subsection 2 requires that every special resolution passed by the company in the general meeting in relation to the borrowings shall specify the total amount up to which monies may be borrowed by the board of directors. Thus, the board cannot be given blanket powers to borrow monies up to any extent of its choice, but the special resolution must specify the total amount that can be borrowed.
In other words, the rational thinking in the form of specifying a particular amount must be exercised by the shareholder so that borrowings are restricted. Excessive borrowings at the whims and the specifying of total amount that can be borrowed is a step in this direction. Excessive borrowings at the whims and caprices of the board are dangerous to the company as a whole including its shareholders, क्योंकि वो irrationally unpredictable हो जाएगा ना कि इस special resolution के बाद वो कितना amount borrow करने वाले हैं, कितनी financial liability कंपनी के ऊपर आने वाली है, तो इसीलिए वो amount mention करना बहुत ज़रूरी है. Debt raised in excess of the specified limit. Section 180 subsection 5. If a company incurs a debt in excess of the limit imposed, that is more than the total amount specified in the special resolution, जितना amount mention किया था shareholders ने उससे ज़्यादा का amount वो borrow कर रहे हैं, ठीक है, it shall not be valid या फिर effectual from the point of view of the lender. मतलब जो पैसे दे रहा है ये माना जाएगा नहीं दिया, ठीक है, unless the lender proves that he has advanced the loan in good faith and without the knowledge that the limit imposed has been exceeded. So basically ये lender के ऊपर responsibility डाल दी कि जब भी आप amount lend कर रहे हो to a company, you need to check कि क्या special resolution पास हुआ है तो कितने amount तक के लिए हुआ है, क्या कंपनी ने उतने तक अमाउंट बोरो कर लिया है या फिर बचा है कोई लिमिट में, ठीक है, तो इसीलिए लेंडर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्चुअलिटी नहीं होगी, इफेक्चुअल नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो लेंडर को देखना है कि लिमिट हो रही है, क्रॉस नहीं हो रही. लेकिन अगर लेंडर इस बात को प्रूफ कर देता है कि उसने जो लोन दिया है वो गुड फेथ में दिया है एंड उसको ये नहीं पता था कि जो लिमिट इम्पोज करी गई थी वो एक्सीड हो चुकी है, सिर्फ उसी केस में ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है. Thus lender has to be fully cautious before extending any loan to a company. The loaned amount must not be in excess of the limit imposed, otherwise it shall not be legally enforceable against the company. Company उसके जिम्मेवार नहीं होगी. In other words, the lender must be aware in no uncertain terms the implications of section 180 subsection 5. तो lender के ऊपर responsibility है भाई section 180 subsection 5 को जान लो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. And must carefully check the financial statements as well as the special resolution if any passed by the company before extending any loan facility to it. तो आपकी responsibility है सब चीज़ें check करो, ठीक है. अब बात आती है टेम्पररी लोन्स का मतलब क्या है जो हमने पीछे पढ़ा था. So it is clarified by way of explanation that the term temporary loans means loans repayable on demand or within 6 months from the date of the loan, such as short term, cash credit arrangements, discounting of bills and the issue of other short term loans of a seasonal character, but does not include loans raised for the purpose of financial expenditure of capital nature. इसीलिए हम उसको include करते हैं. बाकी जो भी repayable on demand होते हैं या फिर 6 महीने के अंदर short term में बिल्कुल 6 महीने के अंदर पे होने हैं, उनको आप temporary loans में मत गिनो. Exemption to a banking company. The acceptance by a banking company in the ordinary course of its business of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft or order or otherwise shall not be deemed to be a borrowing of monies by the banking company. So the ordinary course of business का काम होता है, तो banking company को क्या दे दी? Exemption दे दी, ठीक है. Next, to remit or give time for the repayment of any debt due from a director. Thus, if any debt is repayable by a director, then it cannot be remitted or its repayment time cannot be extended unless the consent by passing a special resolution is given by the company. किसी डायरेक्टर को लोन दिया था, ठीक है, अब वो लोन डायरेक्टर को रीपे करना है, तो उसकी रेमिटेंस को, ठीक है, या फिर उसकी जो रीपेमेंट टाइम है उसको आप बिना शेयर होल्डर्स की परमिशन के एक्सटेंड नहीं कर सकते. अगर इस चीज़ का कंट्रोल डायरेक्टर्स को दे देते तो सब लोन लेके बैठे रहते और कभी भी रीपे नहीं करते. इसीलिए स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट डाल दी कि शेयर होल्डर्स को इस बारे में पता होना चाहिए और उनकी अप्रूवल के बाद ही आप रीपेमेंट को टाइम को एक्सीड कर सकते हो, ठीक है. सो देयर इज एन एग्जाम्पल, लेट्स डू इट. The board of directors of Stepping Stones Publications Limited resolved to borrow a sum of rupees 15 crores
बोरोइंग हो गई फ्रॉम अ nationalized bank at a board meeting held on 15th of January. One of the directors who opposed the said borrowings as not in the interest of the company has raised an issue that the said borrowing is outside the borrowing powers of the board. The company seeks your advice and the following data is given for your information. सो शेयर कैपिटल दे रखी है 5 करोड़, रिजर्व्स इन सरप्लस दे रखा है 5 करोड़, सिक्योर्ड लोन्स दे रखे हैं 15 करोड़, अनसिक्योर्ड लोन्स दिए हुए 5 करोड़. सो अगर इसमें मैं टोटल लोन्स देखूँ तो अभी तक तो 5 और 15 हो चुके हैं, 20 हो चुके हैं, प्लस हमारे 15 करोड़ के प्रपोज्ड हैं. तो हमें एग्रीगेट करते हुए प्रपोज्ड वाले भी लेने पड़ते थे. सो 15 प्लस 5 प्लस 15 35. ठीक है. और हमारी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 5 प्लस 5. तो दिस कम्स आउट टू बी 10. सो ये एक्सेस में जा रहा है, एक्सेस में जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है. सो एडवाइस करो मैनेजमेंट को. आंसर पढ़ते हैं. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से और आप खुद भी कैलकुलेट कर चुके होगे मेरे बोलने से पहले. ओके, वेरी गुड. लेट्स डू द आंसर. According to the provisions of section 180 subsection 1c of the Companies Act 2013, the powers of the board are not uncontrolled and there are restrictions on the borrowing powers to be exercised by the board of directors. According to the said section, the borrowings should not exceed the aggregate of the paid up share capital, free reserves and securities premium. While calculating the limit, the temporary loans obtained by the company from its bankers in the ordinary course of business will be excluded. However, the figures available in the present case, the proposed borrowing of rupees 15 crores will obviously exceed the limit calculated as per the given information. क्योंकि जो 15 करोड़ है वो अभी ही पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस से एक्सीड कर रहा है, तो उसमें मैं ऑलरेडी टेकन बोरोइंग्स को भी ऐड करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा. So, however, from the figures available in the present case, the proposed borrowing of 15 crores will exceed the limit calculated as per the given information. Thus, the proposed borrowings are beyond the powers of the board of directors. In the view of the above position, the management of Stepping Stone Publications Limited should take steps to pass a special resolution authorizing to borrow the proposed amount of 15 crores so that the requirement of section 180 subsection 1c is satisfied. Only thereafter the proposed borrowing can be availed of. I hope you got the answer right. Okay, so let's do the already हम पढ़ ही चुके हैं in the beginning of this section only कि this section is not applicable to a private company. बस यहाँ एक line add कर दी which we already know कि section 137 और section 92 का compliance हुआ होना चाहिए तभी private company को exemption है. ठीक है. सो आप इसमें आपको ये पता ही था ऑलरेडी, बस ये जस्ट क्लैरिफिकेशन. तो आपको याद रहेगा कि सेक्शन 180 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी हु हैज़ नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 137 और सेक्शन 92. आई होप you enjoyed today's two sections that are section 179 and section 180. Okay, so this was all about today's video. If you liked the video, do give it a thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. And if you really liked it and feel that these will be useful for some other people also, you may share them with your friends and let them also enjoy studying with us. I hope you are enjoying these sessions. So this is all for today. I'll pin the description, I'll add the playlist of this whole chapter in the description box in case you want to refer any section, particular section which you want to study. So I'll mention the link of the playlist in the description box for your convenience. So yeah, this is all for today. I hope you all are enjoying and that's it for today. Okay, we'll see you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy and bye bye.